You may be getting this white screen. I am getting it on my tablet because I am side by side making use of my tablet so that I can keep a trail whether I am connected or not. हम लोगों ने जब Linux स्टार्ट किया था तो वी हैव स्टडीड अ नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. वी हैव स्टडीड दैट एवरीथिंग in Linux operating system is treated as a file. So whether it's hardware or it's software, everything we treat as a file. Similarly, associated with file, we are having the concept of permissions. Why do we have permissions? Because it's a multi-user environment, and any multi-user environment, if we are having, we must be having certain cautions, because you have to be very caution. You have to take the caution to keep your data safe. So obviously, for that purpose, we are having some security practices implemented. And one of the measures of security is in the form of permissions. So we have seen that we are having reading, writing, and execution permissions. Similarly, in case of file, we have seen that file, so far whatever we have been saying, file is file in Linux also, but we term it as a regular file. So if you write any Java program, C program, or we have actually practiced a number of programs in C language while studying the system call programming. So all those programs fall in the category of regular files. Then besides that, you know that we have to arrange all these files in the form of folders, because folder is a sort of almirah where we are arranging all the files. But in case of Linux, it is also called a directory file. So we are having directories, we are having regular files. Directory is referred to as directory file, and regular file means the file or program written in Java, or maybe your seminar report, maybe your project report. उसके अलावा जो hardware है is also treated in the form of a file. So as you know, we are having the concept of device drivers. So whenever we are connecting any device to our computer system, we need the corresponding device driver. So similarly, here too we are having everything in the form of a file. So if we wish to make use of hard disk, then we have to have a file corresponding to that hard disk. So actually we perform the operation on that file which corresponds to hard disk, but practically that operation is carried out over the hard disk. तो हर जो आप हार्डवेयर को यूज करते हैं उसी करस्पॉन्डिंग एक फाइल होती है. हम ऑपरेशन फाइल पे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस हार्डवेयर पे परफॉर्म होता है. तो हमने इन फाइल्स को क्या कहते हैं? दे आर बेसिकली कॉल्ड स्पेशल फाइल्स, और समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज डिवाइस फाइल्स. ठीक है. और इसमें मैंने दो कैटेगरी डिस्कस की थी. वन वाज ब्लॉक ओरिएंटेड एंड सेकंड वाज कैरेक्टर ओरिएंटेड. सो नॉर्मली जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं वो डिस्प्ले डिवाइसेस में जो है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड होती हैं, और जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो ब्लॉक ओरिएंटेड होती हैं. तो वी हैव सीन अ कंसेप्ट ऑफ लिस्टिंग. जैसे हम अगर लिस्ट करते हैं या डायरेक्टरी को लिस्ट करते हैं ऑन स्क्रीन, तो उनके बारे में डिटेल्स आती हैं. जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि अगर डॉलर टॉन पे टाइप ls and we wish to see the content of this current directory, so we are writing ls minus l, so we get the listing in long format. तो उसमें मैंने बताया था कि the first column is comprising of total 10 characters. Out of these 10 characters, the 9 characters are basically meant for permissions. वो केवल permissions के लिए थे. और जो पहला character था that was for the type of file. तो उसमें मैंने कहा था कि if you are getting minus sign, so that indicates, or hyphen, that indicates it's a regular file. और similarly अगर आपको उसमें D मिलता है तो इसका मतलब वो डायरेक्टरी फाइल है, और अगर उसके अंदर B या फिर C मिलता है तो इसका मतलब है वो डिवाइस फाइल है. ठीक है. उसके अलावा इसमें और भी कंसेप्ट हैं, जैसे पाइप्स का है, लिंक्स का है, जिसको हम बाद में इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन पाइप का सिंबॉलिकली जो एक पाइप आपको अवेलेबल होता है, दैट एग्जांपल वी हैव सीन, कि अगर कभी हमें व्हेन वी सी द कंटेंट ऑफ एनी डायरेक्टरी एंड इफ द कंटेंट्स आर टू मच, देन वी कैन अटैच इट टू द मोर कमांड. So we can combine two commands by just making use of this pipeline symbol. So we are piping the output of this command as input to the next command. And what basically more is doing, it is paginating the output of this ls minus l. So page wise we can see the output on the screen. So I mean, we don't have any limit that how many commands we can combine
as much as far as they have some logical sequencing, we can continue with the typing, ठीक है। और उसके उसके साथ मैंने कुछ मेटा कैरेक्टर्स भी आपसे डिस्कस किए थे कि जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है शेल के लिए, ठीक है। बट बहरहाल यहाँ पे जो ये फाइल्स हैं, ये या तो रेगुलर फाइल होगी या डायरेक्टरी फाइल होगी या ब्लॉक ओरिएंटेड या कैरेक्टर ओरिएंटेड होगी या ये पाइप्स होंगे या लिंक्स होंगे, ठीक है। इनको हम लोग डिटेल में बाद में भी देखेंगे, या फिर सॉकेट्स हो सकते हैं, ऑल्दो सॉकेट्स आर नॉट मच, दे आर नॉट इन डिटेल्स इन आवर सिलेबस, बट इफ टाइम परमिट्स देन वी कैन डिस्कस सॉकेट्स आल्सो। तो ये जो फाइल का कंसेप्ट था, इसीलिए नॉर्मली एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि लाइनेक्स और यूनिक्स व्यूज एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, उसके लिए सब कुछ फाइल है, ठीक है। तो अब I suppose कि ये क्लियर है। Just to brush up all the concept which we have studied in past, I am just having a overview of what we have studied. फिर परमिशंस के लिए मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे जो परमिशंस हैं वो 3 लेवल्स पे डिवाइडेड हैं, एक यूजर के लेवल पे, और एक जो है ग्रुप के लेवल पे, और एक अदर्स के लेवल पे। ये परमिशंस थी। और ग्रुप का मतलब है ओनर, जैसे इफ आई एम लॉग्ड इन टू द सिस्टम एज यूजर, मेरा लॉगिन का नाम अगर यूजर है, जैसे अभी आप देखते हैं कि जो मैं अधिकतर लाइनक्स पे काम करता हूं वो यूजर है, तो यूजर पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो जो भी मैं फाइल क्रिएट करता हूं, आई एम ओनर ऑफ दैट फाइल, मैं उसका ओनर हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरी प्रिविलेजेस जो होंगी किसी से भी ज्यादा होंगी, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड दैट फाइल। और वैसे ही जो है ग्रुप मेंबर्स थे और अदर्स थे, ये भी एग्जांपल मैंने कई बार आपको साइट किया है कि क्लास में अगर 5 ग्रुप हैं प्रोजेक्ट्स के और हर एक ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 10 में से हर एक व्यक्ति जो अपने लिए फाइल बनाएगा वो उसकी कैटेगरी अपने लिए तो यूजर है, लेकिन जो उसने फाइल बनाई है उसकी प्रिविलेजेस वो अपने प्रोजेक्ट मेट्स को दे सकता है। तो वो जो प्रोजेक्ट मेट्स को जो परमिशंस मिलती हैं वो ग्रुप लेवल की परमिशंस हो गई। और हम एज ए मेंबर ऑफ एनी प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो हम अदर्स को कोई परमिशंस ना दें, या अगर देंगे तो बहुत लिमिटेड दें, तो ये थर्ड लेवल हो गया। तो 3 लेवल्स हैं, और इन 3 का सिग्निफिकेंस जो है इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसमें देयर इज अ फाइल कॉल्ड /etc/password। तो ये जो पासवर्ड फाइल है, एक्चुअली द नेम इज, दिस इज द नेम कि /etc/password फाइल है। और ये जो पासवर्ड फाइल है ये एक तरीके से डेटाबेस है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें यू आर हैविंग सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म, मे बी फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस, दैट ओनली द लेजिटिमेट यूजर has the right of making use of certain privileges. So we normally have the concept of admins कि हम अगर कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक एडमिन होता है जिसके पास सारी राइट्स होते हैं, ठीक है। और वो एडमिन डिसाइड करता है कि बाकी लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, तो वो उनके और यूजर्स को क्रिएट करता है और यूजर्स को जो है राइट डिस्ट्रीब्यूट करता है। कई बार ऐसा होता है एज ए प्रिकॉशन we also have 2 or more admins, so that if somebody is forgetting the password and if he is having the rights of admin, so obviously some other person should resume that duty and should reset the password of previous admin, तो उसको फिर से जो है रीगेन करा सकता है उसके एक्सेस को। तो ये सजेस्टेड होता है कि नॉर्मली 2 या 2 से ज्यादा एडमिन हो, सो दैट कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती है वेयर वन एडमिन बिकम्स नॉन फंक्शनल, तो एटलीस्ट सेकंड वन कैन रिज्यूम द ऑपरेशन। तो यहाँ पे जब भी ये ऐसा होता है कि हम लोग रिसोर्स शेयरिंग करते हो, जैसे हार्ड डिस्क के कॉमन है और उस हार्ड डिस्क के ऊपर सभी का डेटा जा रहा है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लाइनक्स में अगर आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को देखें तो वी आर हैविंग अ सर्वर एंड टू दैट सर्वर अ नंबर ऑफ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एंड दीज टर्मिनल्स आर बेसिकली रेफर्ड टू एज डंप टर्मिनल्स, DUMB, क्योंकि इनका जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं वो उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एवरीथिंग गोज फॉर एग्जीक्यूशन टू दिस मशीन ओनली। तो हर एक व्यक्ति जो भी कुछ टाइप कर रहा है वो सब इसी पे जा रहा है। जैसे कि आप ITRC में देखते हैं कि अगर लैब है, लैब में वी आर हैविंग इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। व्हाई इंटेलिजेंट? बिकॉज एवरी टर्मिनल हैज अ CPU and it's a full-fledged terminal. I mean, even if you are disconnecting it from the network, you can standalone work on this system. The only thing which is missing is network access, ठीक है, बट अदरवाइज वो कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि वी आर हैविंग ओनली मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड वी आर नॉट हैविंग CPU, सो नथिंग यू कैन डू।
बट लाइनेक्स में ये चीज पॉसिबल है कि वी आर हैविंग अ सर्वर एंड टू दैट सर्वर अ नंबर ऑफ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एंड बेसिकली दे आर हैविंग मॉनिटर एंड कीबोर्ड. Of course the configuration of hardware is not similar to what we are using as a general purpose PC in labs, उससे डिफरेंट होता है. बट ये डम टर्मिनल होता है क्योंकि इसकी लोकल प्रोसेसिंग इसमें कुछ नहीं होती है. तो ये सस्ता भी बहुत होता है क्योंकि मेन जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल सर्वर के ऊपर होता है. तो अगर आपने किसी डम टर्मिनल से कनेक्ट मतलब बैठे हैं उस पर कनेक्ट हैं, और अगर नहीं भी है, अगर वो इंटेलिजेंट टर्मिनल भी है, जैसे अगर IITRC के लैब में देखें तो वी मे बी हैविंग अ सर्वर, लाइनेक्स सर्वर kept in server room, and we may be sitting in computing lab, and there either we can work in Windows, or if we wish to work on Linux server, so we are having some mechanism like we can make use of Telnet, or we can make use of Getty, and we can get connected with the Linux server kept in the server room. तो अगर आप एक बार उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो जो आपका लोकल जो सिस्टम है जो लैब के अंदर रखा हुआ है, उसका जो CPU है वो कहीं यूज नहीं होगा, उसकी जो रैम है वो कहीं यूज नहीं होगी, उसकी हार्ड डिस्क आपके लिए यूजलेस है, उसकी जो USB पोर्ट्स है वो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आप जो है अब कनेक्ट हो गए हैं इस सर्वर से. तो वट एवर यू आर डूइंग इज गोइंग डायरेक्टली टू दिस सर्वर. तो अब अगर आपको कुछ बैकअप भी लेना है, देन आल्सो यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द प्रोग्रामर हु इज लुकिंग आफ्टर दैट सर्वर कि प्लीज टेक माय पेन ड्राइव एंड give me the backup, because you cannot take the backup on your terminal. Even if you are having a CPU and you are having a USB port, you cannot take. तो आप उसके लिए अपना जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आप प्रोग्रामर को या जो पर्सन उसको लुक आफ्टर कर रहा है उसको देना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रिसोर्स की शेयरिंग करते हैं मेजर वे में, जैसे आपके लॉगिन्स जो है वो कहाँ बने, सर्वर पे बने हैं. तो सर्वर पे अगर वो हार्ड डिस्क है तो उस हार्ड डिस्क में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें जो आपको अवेलेबल होते हैं वंस यू आर कनेक्टेड टू द मशीन. आपने कोई यूजर नाम ABC यूज किया और से आपका पासवर्ड जो है वो XXX है, तो आप उससे लॉगिन हो गए एंड यू हैव गॉट डॉलर प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं दैट गोज टू योर होम डायरेक्टरी. एंड वेयर इज योर होम डायरेक्टरी? इट इज एक्चुअली ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द लाइनेक्स सर्वर. वो उसके ऊपर जो आपकी डायरेक्टरी है वहां पे उस आपकी होम डायरेक्टरी वहां बनी है. तो आप ही की नहीं बनी, वहां पे 100-200 यूजर्स की बनी होगी. तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कि वी आर हैविंग द कांसेप्ट ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड. और आप ये जानते हैं कि जब भी हम पासवर्ड देते हैं तो वी हैव टू हैव some database, some repository where already we are having the legitimate password stored, so that whatever password you are submitting on command line or on the terminal, so that password has to get verified from that database. तो one such database is /etc/password फाइल. तो इसी फाइल के अगेंस्ट वो सारा चेक होता है कि आपका पासवर्ड जो है, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं जो आपने दिए हैं वो सही हैं कि नहीं है. तो पुराने जो वर्जन्स हैं यूनिक्स के, उन सब में पासवर्ड फाइल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर पहला तो यूजर आईडी होता था. जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यूजर आईडी ABC है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ABC लिखा होगा. देन एवरी फील्ड इज सेपरेटेड विद कोलन साइन. तो सेकंड फील्ड में जो है पासवर्ड लिखा होता है. तो पुराने समय में आई मीन इन माय टाइम व्हेन आई वाज परसुइंग माय बीटेक, तो व्हेन वी यूज्ड टू चेक दिस पासवर्ड फाइल वी यूज्ड टू हैव द एन्क्रिप्टेड पासवर्ड इन दिस फील्ड. जो सेकंड फील्ड है उसमें एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होता था. तो कुछ गार्बेज कैरेक्टर से आपको अजीब अजीब कैरेक्टर्स यहाँ दिखाई देते थे, तो उसमें एन्क्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ विजिबल था. और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपका कोई एक नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए 23 एक नंबर है, और उसके बाद फिर एक और नंबर है 44, वो भी एक नंबर है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज द UID नंबर, और इसको हम कहते हैं GID नंबर. अच्छा, इन नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वी हैव सीन इन द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग कि वहां पे जब हम कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नंबर, एंड दैट यूनिक नंबर इज प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, उसी से उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो प्लीज एक्नॉलेज वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, बिकॉज on my tablet I can see that whatever I am teaching over here is coming on that screen. So you please confirm whether you are getting it or not. Okay. So I have got the message of Nandan. He is affirming that he is listening. तो यहाँ पे जो ये यूजर आईडी है, ये तो ABC हो गई. पासवर्ड जो है, क्योंकि पुराने टाइम में ये माना जाता था कि पासवर्ड जो है वो एन्क्रिप्टेड यहीं पे आएगा, लेकिन बाद में
since the access of password file is available to everybody. I mean, you can see the content of this password file as an ordinary user by just sitting on a dumb terminal. So that question, the question arises that then to somebody it is possible that he can just set the password of his login, and he can simply open the password file to have the view he what encrypted password has been generated for the password which he has entered for his user ID. So with this kind of hit and trial, probably he can decode that what is the encryption mechanism used by the Unix operating system while encrypting the password and storing them in the password file. So it was posing a threat to the system security. So later on, what happened? Instead of showing the encrypted password in the password file, it was shown now in another file called shadow file. ठीक है, ये शेडो फाइल के अंदर आना शुरू हो गया और यहाँ पे we simply get alphabet X whether you have set the password or not, or irrespective to what is the length of your password, we are having only the alphabet X appearing in the second field, that is the password field. So by just merely looking at X you cannot understand what password has been set for this user, so you cannot decode it. ठीक है, and the shadow file is available only to the super user, and in case of Linux or Unix the super user is root. तो केवल उसी को ही अवेलेबिलिटी रहेगी, बाकी कोई इसको शेडो फाइल को देख नहीं सकता। तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए एक फाइल है, ठीक है। Yes, I am watching the message of Vishal. He is saying root. I am also saying that it's root. So anyways, जो यहाँ पे जो पासवर्ड फाइल है वो सबको अवेलेबल है एंड नाउ इट इज नॉट पोजिंग अ थ्रेट। फिर अगला आ जाते हैं कि यूआईडी नंबर। तो हर एक यूजर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे कि in classroom we are having a specific roll number and no two students can have the same roll number. So normally what is happening when we are having 50 students in the class, we start sequencing them as 1 2 3 4 5 and we go up to 50. But it's possible that in order to maintain the uniqueness, it is possible that you are having roll number 49 and instead of assigning to 50 you are assigning 63 somebody, but uniqueness is maintained but that sequence is broken. So normally what is happening when we create any user, we are not breaking the sequence. We maintain the sequence but at the same time we maintain the uniqueness also. So by default अगर आप कोई user बनाते हैं तो you should not worry about the UID number because UID number will automatically be assigned when you create any user. ठीक है, अगर आप manually create करते हैं and you are opening the password file, then you have to see that what user ID has been assigned to the last user. So if it is 23, obviously you have to add a new line with 24, UID number 24. तो आप उसको फिर उस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया UID, और ये किसके लिए होती है, इसका सिग्निफिकेंस किसके लिए, यूजर या ओनर के लिए। दूसरा आता है कि ये जो नंबर है ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो एक फाइल और है जिसको we say that /etc/group, it keeps the details of groups। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लास में कई बार आपको एग्जांपल्स दिया है कि सपोज इफ आई एम हैविंग अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड आई एम हैविंग टोटल maybe 25 projects, so obviously I'll be having in every project 2 students, so I can group them। तो उनके मैं ग्रुप बना सकता हूँ। तो कितने ग्रुप मुझे बनाने पड़ेंगे, 25 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट करस्पॉन्डिंग मैं एक ग्रुप बना दूंगा। या अगर मैं 10 मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं तो हर एक ग्रुप के अंदर 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो मैं जो है 10 ग्रुप मैंने बना दिए और उनकी एंट्री कहाँ पे होगी, दैट एंट्री वी कैन मेक इन द ग्रुप फाइल। तो ग्रुप फाइल में भी जब एंट्री होती है, अगर आपसे कहा जाता है कि मैन्युअली यू हैव टू मेक द एडिशन ऑफ एनी यूजर, और अगर आपसे ये भी कहा जाता है कि दिस इज द न्यू क्लास एंड यू हैव टू क्रिएट द न्यू ग्रुप आल्सो, सो ऑब्वियसली दैट एडिशन यू हैव टू मेक इन द ग्रुप फाइल। ठीक है, जब हम ग्रुप फाइल में एडिशन करते हैं तो देयर टू वी आर हैविंग द एंट्री सिमिलर टू व्हाट वी डू इन केस ऑफ पासवर्ड फाइल, लेकिन उतनी फील्ड्स उसमें नहीं होती। तो अगर ग्रुप का नाम मैंने लेटर सपोज मैंने ग्रुप्स जो उसमें बनाए हैं वो PRJ1 है, PRJ2 है, PRJ3 है, इस तरीके से मैं ग्रुप बना सकता हूँ वहां पे। और इन ग्रुप्स की जब मैं एंट्री करता हूँ वहां पे, तो देयर वी आल्सो असाइन अ पासवर्ड। उसका क्या सिग्निफिकेंस है दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। और वहां पे एक नंबर भी इसको ग्रुप को दिया जाता है, लेट अस सपोज दैट नंबर इज 44। सो व्हाइल आई एम क्रिएटिंग दिस ABC यूजर and if I give 44, that means I wish that this ABC should belong to PRJ1,
And apart from ABC, if another person who is also member of the same group, and let us suppose his user ID is ABC1, so I'll also write in his entry in the password file 24. That means user ID will be different because 23 already we have assigned, so it will become 24. But here I'll keep 44 because I wish that this ABC1 should also belong to the same group to which ABC is belonging. तो ये दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर जाएंगे. तो इस तरीके से वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स. तो ये जो आपका राइट्स हैं, जो आप 9 राइट्स आपको मैंने डिस्कस किए थे, उसमें पहले 3 राइट्स जो हैं यूजर के लिए हैं, दूसरे 3 राइट ग्रुप के लिए हैं और लास्ट 3 राइट जो हैं अदर्स के लिए हैं. अदर्स कौन होंगे? जैसे कि अगर एबीसी जो है वो 44 ग्रुप का मेंबर है, तो कोई भी और जो 45 का या 46 नंबर ग्रुप का जो मेंबर होगा वो क्या होंगे? दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स. तो एबीसी कुछ भी अगर क्रिएट करता है तो ऐसा कोई यूजर जो 45 ग्रुप को बिलोंग करता हो वो किस कैटेगरी में होगा? वो अदर्स की कैटेगरी में होगा. ठीक है. तो ये जो पासवर्ड फाइल है इसका सिग्निफिकेंस यही है कि व्हेन वी आर लॉग्ड इन टू द सिस्टम then our credentials are verified against the entries in password file, and when they are proved that they are matching, then only we are allowed to have the access or have the connectivity with the Linux server. ठीक है. तो इसलिए ये पासवर्ड कंसेप्ट यहाँ पे है. इनकी डिटेल्स जो है विल स्टडी इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट. जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आएगा तो वहाँ पे ये मैटर बहुत करता है कि हम किस तरीके से करें. ऑल्दो पासवर्ड एज ए कमांड इज आल्सो अवेलेबल टू अस, कि अगर आप PASSWD करके कमांड लाइन पे एंड व्हेन यू प्रेस एंटर तो इट विल प्रॉम्प्ट यू टू एंटर द ओल्ड पासवर्ड, एंड व्हेन यू आर एंटरिंग द ओल्ड पासवर्ड देन इट इज आस्किंग यू टू एंटर द न्यू पासवर्ड, देन इट again ask you to enter the retype the new password, and once both new and retype new are matching then it will change the password. तो वो पासवर्ड चेंज हो जाता है. तो ये जो पासवर्ड फाइल है ये हमारे लिए केवल रीड ओनली है एज ए ऑर्डिनरी यूजर. I mean we can see the content of this password file but we cannot modify it, because अगर आपको ये राइट हो then तो you can remove the entry corresponding to any of your enemy. Then that fellow can never log into the system. Why? Because whenever he is trying to get logged in, the credentials will be verified against the entries in password file, and his entry since you have removed, so he cannot be termed as a legitimate user, so he will not be having the access of Linux server. तो इसलिए आपको ये राइट नहीं होता कि यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ पासवर्ड फाइल, बट सुपर यूजर है या जो रूट है उसको ये राइट है कि ही कैन मेक मॉडिफिकेशन ऑफ पासवर्ड फाइल. ठीक है, वो पासवर्ड फाइल को मॉडिफाई कर सकता है. I am lucky in that sense that I have seen that era also, when if somebody some of my students, when I was I used to conduct the lab in computer science department, तो उस समय अगर कोई ये कहता था कि उसका पासवर्ड जो है मिस हो गया है, तो I used to open the password file to remove the encrypted entry from his line stored in the password file. लेकिन वो बाद में वो कंसेप्ट ही हट गया वहाँ से, तो शेडो फाइल आ गई. तो दैट आल्सो इवेंचुअली आई विटनेस्ड कि शेडो फाइल भी क्रिएट हो गई, और जो नए हमारे समय में जो यूनिक्स का वर्जन है उसमें वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ शेडो फाइल. तो उससे हम लोग को ये बेनिफिट हुआ कि पासवर्ड मैनेजमेंट आसान हो गया, और आप शेडो फाइल क्योंकि सुपर यूजर को ही उसके पास एक्सेस होती है तो वही केवल उसको देख सकता है या मॉडिफाई कर सकता है. एंड देयर आर हैंडफुल कमांड्स यूजिंग विच यू कैन रीसेट द पासवर्ड एज ए सुपर यूजर. तो तीनों फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज /etc/password, सेकेंड इज /etc/shadow, एंड द थर्ड वन इज /etc/group. ये तीनों ही फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. इस कॉन्टेक्स्ट में वील स्टडी मोर अबाउट प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, बट दैट इज द डिस्कशन ऑफ सम लेटर क्लासेस. ठीक है. तो फाइल कंसेप्ट और परमिशंस हमने पढ़ी थी, फिर प्रोसेसेस पढ़े थे. प्रोसेस के लिए मैंने बताया था कि कोई भी जो प्रोग्राम है उसको जब हम रन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रोग्राम अ प्रोसेस इज क्रिएटेड. और मैंने उसमें कहा था कि ऑल्दो इन लैंग्वेज तो वी आर सेइंग दैट प्रोसेस इज द रनिंग replica of any program, but actually it is more than a program, because normally this gives the impression and it in fact practically also it is giving the impression that whenever we are creating any process we are having the code in that process. तो कोड तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. और वो क्या है? जैसे कि आपने प्रोसेस लाइफ साइकिल में देखा था कि प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम रेडी स्टेट टू रन स्टेट टू वेट स्टेट एंड अगेन गोइंग टू रेडी स्टेट. दैट मींस व्हेन वी execute any command and the corresponding process is created, then not all the time that code is running and which is corresponding to that command. और वो कोड क्या है? मतलब प्रोसेस है. तो वो प्रोसेस जो है पूरा सीपीयू को नहीं अलॉटेड रहता कि हर समय वो सीपीयू उसको चलाता रहे.
तो उसमें क्या होता है कि वो जो है कभी रेडी स्टेट में जाता है, कभी रन स्टेट में जाता है और कभी वेट स्टेट में जाता है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस वहां पे हैं जो साथ ही साथ जो है चल रहे हैं और कंकरेंट हैं। आल्दो उनका जो एग्जीक्यूशन है वो एक तरीके से सीक्वेंशियल है इंटरनली, क्योंकि इंटरनली तो वन बाय वन उनकी कोई एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज कर रहा है कि विच प्रोसेस हैज टू गेट द टर्न and has to get the turn of using CPU, and because of that only the process is changing its state from ready to run state. लेकिन as a outsider, as a user, what impression we are getting, we know that कि we have entered the command and we are pressing the enter and we are getting the result. तो आपके लिए तो execution उसी moment से start हो जाता है जब आपने enter की press कर दी। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, आपके कमांड के साथ साथ बहुत सारी और कमांड्स भी साथ साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं और सबको थोड़ा थोड़ी बार बार जो चांस मिलता है। और क्योंकि अगर एक कमांड को मान लीजिए उसका 15 माइक्रोसेकंड टोटल उसका एग्जीक्यूशन टाइम है और उसको हर बार केवल 5 ही माइक्रोसेकंड मिल रहा है, तो 3 टर्न तो उसको चाहिए चाहिए ताकि वो 15 माइक्रोसेकंड का टर्न पा सके। अब इस 3 बार टर्न पाने के लिए उसे पता नहीं कितने और प्रोसेसेस को जो है ये देखना पड़ेगा कि उनको सीपीयू अलॉट हो रहा है। तो वो जो है उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है आपको जो रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए वो 25 माइक्रोसेकंड पे मिला, लेकिन उसका रन होने का समय तो केवल जो है 15 माइक्रोसेकंड था। अगर उसको डेडिकेटेड वे में सीपीयू दिया जाता तो 15 सेकंड में वो पूरा हो जाता, लेकिन क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे और प्रोसेस हैं एंड दे आर आल्सो कंपीटिंग विद द प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू माय कमांड, सो ऑब्वियसली they will also get the turn of CPU. So because of that only my process will get delayed and it will complete its 15 microseconds in so many turns. So the number of turns may be 5. ठीक है, क्योंकि वो कभी रन स्टेट में चला जा रहा है, कभी वेट स्टेट में, सॉरी कभी रेडी में चला जा रहा है, कभी वेट में चला जा रहा है। तो इसलिए 15 माइक्रोसेकंड के अलावा 10 माइक्रोसेकंड वो क्या था, या तो वो रेडी में था या वो वेट में था, और दोनों ही स्थिति को हम क्या नरेट करते हैं कि वो वेट स्टेट में है। तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें आप एक गैंट चार्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर यही तो होता है कि वी आर हैविंग 2-3 कॉलम्स एंड देयर वी आर हैविंग सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट में मतलब एक्चुअल जो सीपीयू टाइम है जो किसी प्रोसेस को रन होने के लिए चाहिए, लेकिन वो उतने एक्चुअल समय में हो नहीं सकता। रीजन बीइंग कि उसको उतने समय के लिए डेडिकेटेड वे में सीपीयू नहीं मिलेगा, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस साथ कंप्लीट करना पड़ेगा और जितने नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होंगे उतनी देर में उसका टर्न आएगा। मेरे पास एक किताब है और मैं किसी क्लास में या किसी ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कर रहा हूँ और मैं सबको कहता हूँ कि सबको मैं एक दिन के लिए बुक दूंगा, तो जिस व्यक्ति को पहले मैं दूंगा उसको 10वें दिन के बाद फिर से एक बार टर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी क्लास में 60 स्टूडेंट हो तो उसको 2 महीने के बाद टर्न मिलेगा जिसको पहली बार मेरी बुक मिली है, तो ऑब्वियसली डिलेड हो जाएगा। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग कि लॉन्गर विल बी द क्यू, मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनी कमांड। ठीक है, तो जितना लोड बढ़ेगा उतना ही परफॉर्मेंस एडवर्सली अफेक्ट होती है सिस्टम की। तो ये जो कंसेप्ट है प्रोसेस का, इसमें आपने देखा कि वो कई बार जो है वो अपनी रन स्टेट में जाता है, तो इसका तो पूरा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका पूरा स्टेटस चार्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये जब ये रन होता है तो जिन लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा सीईओ वगैरह में, तो आप जानते हैं कि वहां पे वी आर हैविंग प्रोग्राम काउंटर, वी आर हैविंग एक्यूमुलेटर, देयर आर सो मेनी इंटरनल रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर जिनमें कुछ वैल्यूज आती हैं। ये वैसे ही है जैसे इफ आई एम टेकिंग योर क्लास ऑफ लाइनेक्स एंड आई एम हैविंग द टाइम पीरियड ऑफ 50 minutes, so obviously the same blackboard which I am using in my class, I have to leave that blackboard for the next teacher who will be entering after me and he may be teaching some other subject, maybe CEO, तो वो उसी ब्लैकबोर्ड को जब देखेंगे तो वो उसको रब कर देंगे जो मैंने पढ़ाया है। एंड इफ माय लेक्चर इज इनकम्प्लीट, सो प्रॉब्ली आई विश दैट व्हाटएवर आई हैव रिटन सो फॉर दैट शुड come to the next day also, so that I can start my narration from the point where I left it yesterday। तो मैं फिर से चाहूंगा कि मेरे पास वो ब्लैक बोर्ड आ जाए जो मैं पिछली बार मैंने यूज किया था। तो आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे, बहुत इंस्टीट्यूशन में पुराने टाइम में ये होता था कि दे यूज टू हैव द स्लाइडर्स, कि एक बोर्ड जो है उन्होंने यूज किया और उसको स्लाइड कर दिया साइड में और दूसरा बोर्ड सामने ले आए। सेकंड टीचर इज कमिंग एंड ही इज मेकिंग यूज ऑफ दैट बोर्ड, and when his class is over, then once again if first teacher is coming, तो वो अपना जो उसने पहले स्लाइड किया हुआ था वो बोर्ड को वापस फिर से लेके आएगा, उसको फिर से यूज करेगा, तो वो उसी जगह से यूज कर लेगा जहां पे उसने अपना एक्सप्लेनेशन छोड़ा था। तो ऐसे ही जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं तो दे मस्ट हैव जनरेटेड सर्टेन वैल्यूज in the register of microprocessor, and we need to preserve those values because then only it is possible that next time when we are resuming the execution from the point where it was interrupted previously, so we have to have the previous results also in hand,
so that we can start the execution from the point where it was interrupted. तो उसको करने के लिए हमें पुराना स्टेटस कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है, वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ स्टैक दैट वी हैव स्टडीड इन डेटा स्ट्रक्चर, तो इसीलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि ओएस स्टैक का यूज करता है। और वो क्या करेगा कि उस प्रोसेस के जो स्टेटस होता है उसको पुश करता रहता है या पॉप करता रहता है। तो जब भी वो पॉप करेगा तो फिर से रीगेन कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो स्टेट्स हैं, दे आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस इज नॉट मेयरली अ कोड, इट इज मोर देन अ कोड। तो हमें इसीलिए हम इसको कहते हैं, बट लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग में भी से दैट कि process is running replica of any program, but it is more than any program, because program is what? Program is simply a sequence of codes जो आपने लिखे हैं, सी लैंग्वेज में लिखा या किसी में लिखा। आपका प्रोग्राम उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपके प्रोग्राम में स्टैक थोड़ी है, वो तो जो उसको जब एग्जीक्यूशन होगा तो उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा कि स्टैक कहाँ पे है। ठीक है, वो ओएस का काम है, ओएस करेगा। तो आपके कोड के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेस क्रिएट होगा, उस प्रोसेस में ये सारी इंफॉर्मेशन इम्बेड रहेगी। इसलिए ही कहा जाता है कि प्रोसेस जो है प्रोग्राम से अलग और उसका बहुत इनहैंस्ड रूप है। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये प्रोसेस कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा आपको। और हम लोगों ने इसी कंसेप्ट में we have tried some system calls and we have seen how these processes are created. ठीक है, बाय द वे जो एक हमारा एग्जीक्यूशन जो लास्ट टाइम रुका था जिसमें प्रिंटफ की गलती आ रही थी, तो उसमें आई बिलीव कि सबको ये क्लियर होगा कि वो उसका एक लाइन बफर होता है। जैसे कि मैंने उसे बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड फाइल हैंडलर होते हैं, जैसे एसटीडी इन, एसटीडी आउट। तो सी लैंग्वेज में अगर आप फ्लश आउट करते हैं एसटीडी इन को, तो इसका मतलब आपने कीबोर्ड के बफर को फ्लश आउट कर दिया। और जब आप एसटीडी आउट को फ्लश आउट करते हैं तो इसका मतलब आपने मॉनिटर के बफर को फ्लश आउट कर दिया। तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट होता है, ये लाइन बफरिंग होती है इसके अंदर। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है कि स्लैश एन अगर आप अंत में लगाएंगे तो स्लैश एन या न्यू लाइन करेक्टर के साथ ये फ्लश आउट करता है। तो आपको जो भी आपका मैसेज है वो प्रिंट जरूर हो जाएगा, इको हो जाएगा। जो मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था उसमें स्लैश एन मैंने पहले लगा दिया था इन द बिगिनिंग ऑफ दैट हेडिंग, तो इसीलिए वो जो है मैसेज पूरा आ नहीं रहा था। अगर इसके पहले मैंने सिर्फ ये भी किया होता शायद कि एक जो है स्लैश एन और लगा देता जो उसको फ्लश आउट कर देता, तो शायद इसको यूज कर लेते। बहरहाल अब आपके लिए थंब रूल ये है कि जब आप उसको यूज करें तो अगर आपको ये लगता है कि स्लैश एन पहले की बजाय अगर लास्ट में भी लगाया जा सकता है, तो प्रिफर टू यूज दैट स्लैश एन एट द एंड ऑफ दैट हेडिंग व्हिच यू विश टू प्रिंट आउट। ठीक है, तो उसमें फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी जो उस दिन आ रही थी कि बिकॉज ऑफ दैट ओनली द प्रिंटिंग वाज नॉट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, जबकि प्रिंटर जो है चल रहा था लेकिन उसका आउटपुट जो है इको नहीं हो रहा था स्क्रीन के ऊपर। बहरहाल ये प्रोसेस के बारे में था। और सिक्योरिटी में तो some measures which we have studied so far is basically the user ID and password, वो मैंने देखा, वो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। और उसके अलावा परमिशंस भी आपको सिक्योरिटी देती हैं, क्योंकि अगर आपने अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया और अपनी होम डायरेक्टरी पे अगर आपने एक्स परमिशन रिवोक कर ली, ग्रुप मेंबर्स के लिए भी अदर्स के लिए भी, तो फिर आप ये जाने कि कोई भी आपके एरिया में चेंज करके अपने लॉगिन से नहीं आ सकता। तो यू कैन प्रोटेक्ट योर एरिया। तो वो भी वी हैव सीन कि कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी जो chmod कमांड यूज करके। और आप उसमें अगर एक्स परमिशन रिवोक कर लें तो वो फिर जो है आपके लॉगिन में नहीं आ सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग, मुझे लगा कि हम फिर से एक बार ब्रशअप कर लें, बिकॉज एक बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया है ऑफ स्टडिंग दिस। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जिनको स्टैंड अलोन हमने कमांड की तरह यूज़ किया, लेकिन अब हम उनको शेल प्रोग्राम में पढ़ेंगे कि शेल में उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक मुझे इसमें अभी एक मैसेज आया था जो मेरे टैब पे, और उसमें फोर्क के बारे में कंफ्यूजन के बारे में कहा था। तो अगर किसी को है तो प्लीज लेट मी नो कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन। हाँ विशाल बताइए क्या प्रॉब्लम है फोर्क में। सर जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लॉग को यूज करते हैं तो सर जब सेकंड वाला फोर्क होगा सर उसके लिए भी जो हमारा सब प्रोसेस स्टार्ट होगा चाइल्ड प्रोसेस, उसमें भी सेम कोड होगा, लेकिन वो फर्स्ट फोर्क को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो इसी से जनरेटेड हुआ है। हाँ, क्योंकि जब एक बार फोर्क जो है एक प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होता है और उससे एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, एक ओरिजिनल पेरेंट प्रोसेस तो रह ही जाता है। ठीक है, यस सर। तो उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट होता है वो दोनों में कॉमन होता है जिसका एग्जीक्यूशन होना है।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो जो भी हो, चाहे प्रिंटफ हो चाहे फोर्क हो, तो वो होगा। तो मैंने कहा था अगर आपके पास 3 फोर्क हैं तो पहला वाला जब फोर्क होगा तो एग्जीक्यूट होता है, तो वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है, जैसे कि मैं भी दिखा भी देता हूं क्योंकि अभी तो यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन है ही है। तो अगर सपोज लेटर सपोज ये मेरा कोड है और इस कोड में हमने पहला फोर्क एक यूज किया है, तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये पेरेंट प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर लेगा, ये पहला चाइल्ड है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए हमने 2 फोर्क और यूज किए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फोर्क। एग्जीक्यूशन वाइज बता रहा हूँ, कोड तो पूरा ही होगा C1 के अंदर, जो पेरेंट के अंदर है वो सारा कोड है, यस सर। लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, पेरेंट का यहाँ से होगा और चाइल्ड का भी यहाँ से होगा अगले स्टेटमेंट से। तो अब क्या होगा, पेरेंट जब इस फोर्क को एग्जीक्यूट करेगा तो इट विल क्रिएट अनदर चाइल्ड प्रोसेस, तो उसने C2 क्रिएट कर दिया। और जब इस चाइल्ड ने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो इट इज आल्सो क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस। लेट अस सपोज दैट चाइल्ड प्रोसेस इज C11, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसमें भी है ना, ये वाला स्टेटमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, यस सर। ठीक। और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इसमें भी है। तो ये जब क्रिएट होगा तो एक और चाइल्ड क्रिएट होगा, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो एक और चाइल्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा तो इट विल आल्सो क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, और ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो इट विल आल्सो क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और थंब रूल ये होता है कि अगर हमने 3 टाइम्स अगर 4 को यूज किया तो 2 3 नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएट होंगे। अगर हमने n टाइम्स यूज किया तो 2n टाइम्स जो है प्रोसेस क्रिएट होंगे। अगर हमने मान लीजिए 2 बार F2 ये 4 को यूज किया होता तो 2 मतलब 4 प्रोसेस क्रिएट होते। अगर 3 बार किया तो 2 मतलब टोटल 8 प्रोसेस क्रिएट हुए। 4 बार अगर यूज किया है तो 16 प्रोसेस क्रिएट हुए, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने सिक्वेंशली लिख रखा है क्या। मैंने आपको याद होगा एक मैंने एग्जांपल लिया था जहां मैंने कंडीशन अप्लाई करी थी। मैं चाहता था कि पेरेंट प्रोसेस जो है केवल 2 चाइल्ड क्रिएट करे। आई वाज नॉट विलिंग टू हैव अ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस, मैं वो नहीं चाह रहा था। तो मैंने उसमें क्या किया था, एक कंडीशन डाल रखी थी कि p इज ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन के बाद अगला वाला फोर्क डाला था। तो अगला वाला फोर्क जो है केवल पेरेंट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ और चाइल्ड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उससे हमने रिस्ट्रिक्ट किया था कि एक प्रोसेस जो है वो केवल 2 चाइल्ड क्रिएट करे, तो रैम में केवल 3 प्रोसेस रहेंगे, एक पेरेंट और उसके 2 चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। वो कंडीशनल कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर? हाँ ठीक, ओके विशाल। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग एक बार जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर देखते हैं कि जैसा समय होगा तो और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले तो इसको मैं ओके तो इसमें जो है आई एम जस्ट मूविंग टू अ डायरेक्टरी। लेट अस सी, हाँ शेल में ऑलरेडी मैं हूँ, ठीक है। अब कोई मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ या प्रोग्राम लिखता हूँ। सपोज मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, सीधे उसको कैट से ही बना देता हूँ। से दैट प्रोग्राम इज f1.sh। एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, भले ही हम लोग .sh लगाते हों, लेकिन ये .sh मैंडेटरी नहीं है। मेरे प्रोग्राम का नाम केवल f1 भी हो सकता है। एसएच मैं सिर्फ इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स जब हम लिखते हैं, कभी कोई सी में लिखा कोई जावा में लिखा, तो सी और जावा में तो यू नो कि देयर इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपाइलर कि यू हैव टू हैव .c एक्सटेंशन और .java एक्सटेंशन इन केस ऑफ सी और जावा प्रोग्राम। शेल में ऐसा कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू हैव टू हैव .sh एक्सटेंशन, बट दैट वी आर डूइंग फ्रॉम आवर साइड। तो आप ये समझें कि इंटरनली इट इज ट्रीटेड एज इफ वी आर हैविंग अ फाइल ऑफ 5 अल्फाबेट्स, F1 फिर पीरियड साइन फिर S फिर H। इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि डॉट और SH जो है वो एक्सटेंशन है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है।
तो ये 5 कैरेक्टर का एक नाम है सिंपली, जिसमें डॉट भी जो है वो एक सिंपल कैरेक्टर की तरह ही है, जैसे एफ है, जैसे कि एस है, जैसे कि 1 है, वैसे ही। ठीक है, तो एक मान लीजिए ये एक मैंने सिंपल प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि प्रोग्राम 2-3 लाइनों का ही था, तो क्योंकि एडिटर यूज़ करते हैं तो उसका जो फॉन्ट साइज है मैंने इंक्रीज नहीं कर रखा, तो बहुत मिनिएचर सा दिखाई देता है, तो क्लैरिटी के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मेरी ये फाइल बन गई एक, ये मेरी फाइल बन गई। ठीक है, और इस फाइल को रीडिंग राइटिंग और रीडिंग, ये इसके राइट्स हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने दे रखे हैं, और इस राइट्स में अब हमें इसको रन कराना है इस प्रोग्राम को, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है, जैसे आपने देखा कि जो स्क्रिप्ट्स होती हैं नॉर्मली हर एक प्रोग्राम को थोड़ी हम लोग कंपाइल करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट जो होती हैं वो सीधे इंटरप्रेट होती हैं, जैसे HTML में आप देखते हो कि यू आर राइटिंग सम पेज, और जब आप उसको ब्राउजर में करते हैं तो ब्राउजर खुद ही उसको इंटरप्रेट कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, इसमें से हर एक कमांड जो मैंने यूज करी है, इको मदन, इको मोहन, ये सब के सब हम कमांड लाइन पे भी चला सकते हैं सीधे, विदाउट राइटिंग देम इन द फाइल f1.sh। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आई एम जस्ट सेटिंग द एक्स परमिशन ऑन द फाइल f1.sh। अब मैं इसको रन कराता हूँ f1.sh को। अब आप इसमें देखिए कि जो आउटपुट आ रहा है उसमें जो पहला आउटपुट है वो तो जो इको मदन मैंने किया, तो वट एवर वी हैव रिटन बिटवीन डबल इनवर्टेड कॉमा दैट इज प्रिंटेड एज इट इज। ठीक है, इनफैक्ट अगर इको के बाद आप सिर्फ मदन लिख दोगे देन आल्सो मदन विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, बट हमें हैबिट डालनी चाहिए कि हम डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएं, क्योंकि इसी डबल इनवर्टेड कॉमा में आप डॉलर के साथ वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करते हो। तो आप कभी भी अगर कोई हेडिंग या कुछ भी कांस्टेंट स्ट्रिंग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यू मस्ट इंक्लूड देम दोज स्ट्रिंग्स इन डबल इनवर्ट कॉमा। लेकिन ये जो इको, अच्छा ये जो शेल हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा है, बैश है, बोर्न अगेन शेल। अब इसमें इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से बोर्न शेल से डिफरेंट है। बोर्न शेल में अगर आपने इको मदन और इको मोहन लिखा होता तो एक लाइन में मदन आता और एक लाइन में मोहन आता, अलग अलग लाइनों में प्रिंट, सॉरी एक साथ दोनों प्रिंट होते, मदन और उसके बाद मोहन एक ही लाइन में आते, क्योंकि उसमें जो है स्लैश एन से जो है वो हमें लाइन सेपरेट करनी पड़ती है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट नेचर है बैश के अंदर, वो इको जो है वो राइट एलन की तरह काम करता है, मतलब हर इको जो है वो नई लाइन से ही आपको डाटा प्रिंट करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे मदन जो है एक लाइन में आया, मोहन दूसरी लाइन में आया, उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द इनपुट। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू स्कैनफ स्टेटमेंट ऑफ सी, कि हमने दो वेरिएबल्स के अंदर कुछ डाटा डालना है, तो हमने n1 और n2 लिखा, और देखिए देयर इज नो मैंडेशन दैट यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स n1 एंड n2, वो आपको डिक्लेयर कहीं से नहीं करने, तो उनके कंटेंट ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, अगला आपने लिखा इको। अब देखो यहाँ पे एक फ्लैग हमने यूज किया, एक ऑप्शन यूज किया -c, तो इसमें बहुत सारे जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जैसे स्लैश एन है, स्लैश टी है, वो सब यहाँ पे ऑपरेटिव हो जाते हैं व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ -e ऑप्शन। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर राइटिंग इको -e and then we are printing the value of n1, and /c stands for continue. That means it is not letting the cursor to move to the next line, rather it will keep the cursor to continue with the same line, and that is why it is happening that the n2 value will also appear in the same line. So that is why it is happening that 12 you have got because of the first statement,
and 13 you have got because of the second statement. But why this 13 is continued with the 12? Because we are using /c over here. ठीक है, तो इसलिए वो कंटिन्यू हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल से रूल्स हैं। तो आपने देखा कि वन ऑफ द वे ऑफ गिविंग इनपुट टू एनी प्रोग्राम इज मेकिंग यूज ऑफ रीड स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही चला के दिखाऊं कि से अगर हम कोई और एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, लेट अस मॉडिफाई दिस प्रोग्राम। मैंने पहले पे लिखा है एंटर टू नंबर, ठीक है, और उसमें /c डाल दिया है। अभी इसको उस पर दिखा भी देंगे। और दूसरा फिर 2 नंबर्स इनपुट कराए हैं। अब इन दोनों नंबर्स को आई विश टू ऐड देम। तो व्हाट आई एम राइटिंग इज n3 इज इक्वल टू so this program I have modified, enter 2 numbers, or I wish that it looks more appropriate when the cursor should blink after this heading enter 2 numbers. There only you are supposed to input 2 numbers, so that's why I am putting /c. अगर मैंने ना किया होता तो अगला जो read statement है would have continued from the next line। ठीक है, कर्सर अगली लाइन पे चला जाता है और वो थोड़ा awkward लगता है कि हेडिंग यू आर गेटिंग इन द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन यू आर गेटिंग n1 एंड n2 के लिए रीड। ठीक है, तो अभी सेम आ जाएगा। उसके बाद ये आपने मेटा कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि इफ आई विश टू एग्जीक्यूट एनी कमांड, तो कमांड को हम क्या करते हैं, हम इम्बेड कर देते हैं डॉलर और ब्रैकेट के अंदर। तो पहले ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी असाइन टू n3। तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन $n1 प्लस $n2। so whatever value n1 is holding, that will be substituted over here. Why? Because n1 is proceeding with $sign, so it is treated as a variable। तो जो आपने वैल्यू असाइन करी है वो यहाँ पे आ जाएगी, n2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट फिर n3 को आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने लास्ट लाइन में क्या किया, आई एम प्रिंटिंग द मैसेज द सम ऑफ $n1 एंड $n2 इज $n3। सो नाउ देयर इज नो नीड टू रिकम्पाइल द प्रोग्राम, क्योंकि ये कंपाइलेशन है ही नहीं और एक्स परमिशन आप पहले से ही सेट कर चुके हैं। अगर आप इसको अभी भी देखें तो एक्स परमिशन तो इस प्रोग्राम पे पहले ही सेट है। जो हमने पिछला जब प्रोग्राम लिखा था तो उस पर एक्स परमिशन सेट है। देखिए पहले वाले जगह पे RWX लिखा हुआ है एज ए फॉर यूजर, तो मैं इसको सीधे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो आई एम राइटिंग f1.sh, so enter to, oh I have forgot to write -e option। ठीक है, rightly it is not written over here, but anyways हम उसको देख लेते हैं फिर से। 12-13 and the sum of 12 and 13 is 25। तो केवल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, क्योंकि वो जो फ्लैग है, जो एस्केप सीक्वेंस है, वो इफेक्टिव तभी होगा व्हेन वी आर राइटिंग -e। तो मैं -e यहाँ पे लिखना भूल गया था। तो नाउ एंटर 2 नंबर्स, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो नाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम ./f1.sh 2 नंबर्स। कोई बार बार कहेगा कि 12-13 लेकर हर बार 25 ही दिखा देते हैं। तो एनीवेज इट इज कमिंग आउट टू बी 66। ठीक, तो ये जो एक तरीका है प्रोग्राम के अंदर इसको लिखने का, ये हम लोग और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें कई और तरीके भी हैं। आई मीन नॉट स्टिक टू दिस वन ओनली, दिस कन्वेंशन ओनली, कि जो मेटा कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है, इसका एक पैरेलल दूसरा भी है कि आप यहाँ पे बजाय इसको ऐसे लिखने के यू कैन मेक यूज ऑफ सिंगल बैक कोट्स।
ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जो है इसको सिंगल बैक कोट्स में लिख लिया है, जो टिल्ड साइन के नीचे होता है आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड के, एस्केप की के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे नाउ व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम /f1.sh, two numbers maybe 55 66 121, तो अभी भी वही रिजल्ट आया है। ठीक है, तो या तो हम डॉलर के साथ ब्रैकेट्स में वो कमांड लिख दें और तब उसके आउटपुट को हम असाइन कर दें टू द वेरिएबल रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, और या फिर उसको जो है हम सिंगल बैक कोट्स में कर दें। और ये जो तरीका है जो EXPR को यूज करने का, इस तरीके से ये कन्वेंशनल जो बोन शेल है उसमें है। अगर बैश में देखें तो बैश हैज बिकम मोर एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू बोन शेल। तो अगर इसको देखें तो इसमें तो और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, लुक एट द कोड नाउ। ये जो है ये बैश में हमें एडवांटेज रहती है क्योंकि बैश बहुत एडवांस्ड है, तो वहाँ पे आपको ये रिस्ट्रिक्शन हट जाता है कि यू हैव टू प्रोसीड एवरी वेरिएबल विद डॉलर साइन, दैट वाज द रिस्ट्रिक्शन देयर। लेकिन यहाँ पे ये सीधे चल जाएगा, और ये जो भी आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की, यू सिंपली राइट दैट एक्सप्रेशन बिटवीन डबल सिंपल ब्रैकेट्स। जैसे यहाँ पे सिंगल दो ब्रैकेट n3 फिर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 फिर दो ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो सीधे उसी में लिख दिया। Now suppose if I am writing this, executing this program, so we are giving the numbers 33 44, so the sum of 33 and 44 is 77, so this is also working and this is the most convenient way of writing the program। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, क्योंकि अब अगर आपको बताएं कि जैसे हम लोग सी में पढ़ते हैं कि वी आर यूजिंग n++, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है, तो उसको लिखने में यहाँ पे हमें दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें कन्वेंशनल बोन शेल में, सो अगर आपको a की वैल्यू बढ़ानी है तो यू हैव टू राइट दैट a इन दिस वे। अब इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये तरीका जो है वो थोड़ा सा कम्बरसम लगता है कि हम बार बार इस चीज को लिखें और एक कमांड चलाएं, फिर उसमें एडिशन करें, उसके बाद रीअसाइन करें। यही चीज जो है बोन शेल में बिकम्स वेरी इजी, यू हैव टू सिंपली राइट a++ इन द सेम वे एज वी डू इन केस ऑफ सी एंड जावा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये बता दें कि जो बैश है वो, क्योंकि इसका नाम ही बोर्न अगेन शेल है, तो ये डाउनवर्ड कंपैटिबल है टू बोर्न शेल। ठीक है, सो व्हाटएवर बोर्न शेल इज सपोर्टिंग दैट इज सपोर्टेड बाय बैश, बट मोर देन दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय बैश। तभी हम कहते हैं कि डाउनवर्ड कंपैटिबल का मतलब कि उसके निचली चीजों में जो कुछ भी था वो तो वो सपोर्ट करता ही है, प्लस अपने एडवांस फीचर्स भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो एडवांस फीचर्स हैं वो यही सब हैं। अगर आप बोर्न शेल में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सब बड़ा कम्बरसम होता है, उसमें आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप a++ करना चाहें तो यू कैन डायरेक्टली राइट a++। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये है कि आप अगर सी और जावा के साथ अकस्टम्ड हैं तो उन स्टेटमेंट में केवल ये डिफरेंस जरूर आया कि यू हैव टू include that expression between double braces, but at the same time there are many things which have been made very simple. I mean, you are not required to print semicolon at the end of each line, which we do in case of Java and C or C++. That we never do over here. दूसरा एक चीज और भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को, हाँ यस यू कैन राइट a+=1 कैन आल्सो बी रिटन। ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं इसमें। हो सकता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा हो, बिकॉज अदर्स मे नॉट बी रीडिंग व्हाट विशाल इज आस्किंग, कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो आपका ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग सी लैंग्वेज में सपोर्ट उसका, सॉरी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n/5 हो जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरीका तो ये हो गया, हम प्रोग्राम लिखेंगे और वी आर यूजिंग रीड टाइप ऑफ स्टेटमेंट। नाउ लेट मी मॉडिफाई दिस प्रोग्राम फर्दर। f1.sh, पता चला सारी प्रोग्रामिंग मेरी f1.sh में ही कंप्लीट हो गई।
ठीक है। अब नो नीड टू राइट एक्सप्लिसिटली echo minus e, I mean the same state, the same heading you wish you can include in read itself. तो यहाँ पे लिखा माइनस p and then now see this is program once again. Let me clear the screen so that we can see the contents right from very beginning. अब इसमें देखिए पहला तो जो ये स्टेटमेंट है that I have proceeded with hash. Why? Because कोई भी चीज आप hash से अगर proceed कर देते हैं that becomes comment. So it is similar to writing double slash in C++. ठीक है, या slash star in C language. ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे. तो you have to simply proceed that line with hash sign. तो इसका मतलब that has been treated as that is being treated as a comment. ठीक है. अगला आपने लिखा read minus p. तो whatever statement we wish to, whatever heading we wish to print on the screen, that we have embedded in read itself. So we are not executing echo and then echoing the message and then letting the read statement to execute. Rather, in read itself, we are whatever we wish to print as heading, that we can include, provided we are using minus p flag. ठीक है, तो आपने इसको यूज किया है. नाउ once again we can run this program. So I'm getting the answer 33. ठीक है, तो enter two numbers. I mean we are not seeing any difference when we write echo minus e and enter two numbers with slash c and then using read just to read n1 and n2. ठीक है, इसकी जगह बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे सीधे read के अंदर ही इसको embed कर दिया. ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं रीड से हमें इनपुट देने का. एक तरीका और है जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पोजिशनल पैरामीटर्स को भी यूज करते हैं. हम कमांड लाइन पे ही वैल्यूज दे सकते हैं. तो उससे पहले आपको मैं एक चीज और थोड़ा इसमें मॉडिफाई कर दूं. मुझे आपको दिखाया भी था पहले कभी कि एक वेरिएबल है पाथ विच इज होल्डिंग द कंप्लीट डायरेक्टरी पाथ्स which are to be searched when you type any command on command line. जब आप कमांड कोई कमांड लाइन पे टाइप करते हैं तो वो कमांड जो है सर्च होती है सारी फाइलों में. ठीक है, हाँ, तो वो सर्च होती है सारे इसमें. तो उसमें आपको वन बाय वन जो है सब में जो है आपको देखना होता है इसके अंदर कि ये डायरेक्टरी. तो उसमें क्योंकि कहीं पे भी करंट डायरेक्टरी इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एवरी टाइम यू हैव टू रन द प्रोग्राम यू हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ. तो डॉट स्लैश स्टैंड्स फॉर व्हाट? डॉट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर करंट डायरेक्टरी. तो यहाँ पे डॉट स्लैश हर बार आपको लिखना पड़ता है. अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं सपोज इफ आई राइट, अच्छा ये पाथ क्या है? पाथ इज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल. कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज पहले से प्रीसेट होती है, सेट होती पहले से ही. जैसे इनको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या सिस्टम वेरिएबल्स भी कहते हैं क्योंकि सिस्टम इनकी वैल्यूज को पहले सेट करके रखता है. तो पाथ के अंदर क्या सेट है? पाथ के अंदर सेट है कि व्हेन यू आर टाइपिंग एनी कमांड ऑन कमांड लाइन इट विल बी फर्स्ट सर्च इन स्लैश यूजर स्लैश लोकल स्लैश sbin subdirectory. When it is not found there, then the next directory to be searched is slash user slash local slash bin. If it is not available over here, then the next directory search is slash user slash sbin. तो हर एक डायरेक्टरी को सेपरेट किससे किया गया है? कोलन साइन से. ठीक है, तो यहाँ पे आई विश कि हम यहाँ पे एक जो है इसको मॉडिफाई कर दें. तो आई एम राइटिंग $path then $path and here only I am writing colon डॉट स्लैश. ठीक है, आखिरी में ये आ जाए और मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया. इसका अंतर क्या आया? सपोज नाउ वंस अगेन इफ आई डिस्प्ले, तो अंत में क्या है? कोलन के बाद डॉट स्लैश लग गया. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ f1.sh. तो विदाउट राइटिंग डॉट स्लैश I can use f1.sh. Why? Because now f1.sh will also be searched in the current directory. Earlier what is happening? f1.sh lying where? It is in the current directory shell only. तो अगर हम यहाँ पे डॉट स्लैश नहीं देते थे तो वो जो पाथ के अंदर जितनी डायरेक्टरीज हैं उसी में वो f1.sh को सर्च करता और अगर उसको नहीं मिलता तो वो दे देता कि ये तो कमांड है ही नहीं या ये फाइल है ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते थे? वहां पे डॉट स्लैश लगाते थे क्योंकि हम कंप्लीट पाथ देते थे कि इसको सर्च कहाँ करना है? करंट डायरेक्टरी के अंदर. अभी हमने करंट डायरेक्टरी भी ऐड कर दी है लास्ट में,
तो इसलिए यहाँ पे अब हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो आई एम राइटिंग f1.ss डायरेक्टली प्रेसिंग एंटर, ठीक है, एंटरिंग 2 वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर ऑन स्क्रीन। सो आई सपोज दिस विल आल्सो बी क्लियर कि हम किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यूज जो हैं, जो सिस्टम वेरिएबल्स है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, ये स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं। एंड थोड़ा सा कन्वेंशन ये डिफरेंस होता है कि इसमें यू हैव टू राइट दीज वेरिएबल्स इन कैपिटल, ठीक है, in comparison to user defined variables, but this is not the mandatory rule. I mean, if you take the example of C shell, so there we don't write environment variables in capital only, ठीक है, but normally in bash and bourne shell it is happening that all the environment variables or system variables, they are written in capital, and it is mandatory to write it in capital. एंड बाकी जितने भी हमारे अपने वेरिएबल्स होते हैं, जैसे n1 मैंने लिखा, n2 लिखा, n3 लिखा, सो दे वर रिटन इन लोअर केस अल्फाबेट्स ओनली। तो ये कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं। दिस कन्वेंशन इज एप्लीकेबल टू सी लैंग्वेज आल्सो। यू नो दैट कि सी में इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वहाँ पे स्मॉल ए वेरिएबल इज डिफरेंट देन कैपिटल ए वेरिएबल, बिकॉज दोनों ही अलग अलग हैं, उनके स्काई वैल्यू अलग अलग हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ये केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल पाथ और कैपिटल पाथ इन दोनों में डिफरेंस है। तो एनीवेज यहाँ पे इवेंचुअली क्योंकि ये बात हुई थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो f1.sh में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेट अस सपोज मैंने एक बैश और एग्जीक्यूट किया और अब मैं लिख रहा हूँ f1.sh। हाँ, तो इसने एक्सपोर्ट भी कर लिया है। ये सब फीचर्स भी जो है कन्वेंशनल यूनिक्स में नहीं होते थे। नहीं इसलिए होते थे कि आपने जो वेरिएबल मॉडिफाई किया वो केवल करंट जो आपका शेल सेशन है उसी में अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और अभी क्या है कि इसलिए ऐसा होता था कि जब आपको एक नया सेशन स्टार्ट कर लेते, जैसे मैंने बैश किया तो क्या हुआ, शेल के ऊपर एक और शेल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो अननोन बन जाते हैं फिर से, क्योंकि अभी इसको तो जाने दीजिए क्योंकि ये सिस्टम वेरिएबल है, लेकिन अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा जहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। बहरहाल फर्दर रिड्यूसिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिस्कशन, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम के सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप केवल ये समझें जो अब तक मैंने बताया है कि वी आर हैविंग 3 डिफरेंट वेज ऑफ evaluating the expression. We can write C is equal to, and then we can write the complete command in single backquote in this way, or you can also use dollar and then bracket. This also we studied in meta character, so this is also a way. Or alternatively the best way is to write C is equal to and then we write A plus B. सीधे आप एक्सप्रेशन इसमें you get rid of writing this dollar sign also before variable a. तो a के अगर आप डॉलर लगाइए ना लगाइए कोई अंतर नहीं पड़ता, वो उसको ठीक से इवेलुएट करेगा। तो ये एक तरीका है प्रोग्राम में इनपुट देने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सपोज इफ आई एम राइटिंग से अनदर प्रोग्राम, अगेन टू हैव द font size bigger, I am writing it as f2.sh, ठीक है। यहाँ पे आई राइट I'm receiving a message that Android class is started, so I'm just closing it. Just last example which I am citing over here is, इसमें कुछ चीजें नई हैं। एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का यूज किया है, इसीलिए हमने $1 $2 यूज किया है।
जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसी समय उसमें वैल्यूज भी डाल देंगे, ठीक है। और उसका बाद जो है यहाँ पे इनको समेशन किया, यहाँ पे यू कैन नॉट स्किप डॉलर, ये इट सीम्स लॉजिकल बिकॉज इफ यू राइट c इज इक्वल टू 1 + 2 सो इट विल ऑब्वियसली बिकम 3, ठीक है। इट विल ट्रीट 1 and 2 एज न्यूमरल्स। सो यहाँ पे वो रूल ना लगाइएगा कि c इज इक्वल टू a + b लिख रहे हैं तो वी आर नॉट राइटिंग और प्रोसीडिंग a विद डॉलर साइन, ठीक है। यहाँ पे इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू राइट डॉलर, अदरवाइज दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए पोजिशनल वेरिएबल। तो उसके बाद फिर सम ऑफ दिस इज सी, ये आपने लिखा। ये एक तरीका है टू रन दिस प्रोग्राम। आई हैव नॉट सेट एक्स परमिशन टू दिस प्रोग्राम, रादर आई एम राइटिंग जस्ट बैश। बैश और प्रोग्राम का नाम जब आप शेल स्क्रिप्ट का नाम देते हैं तो आप प्रोग्राम को सीधे रन कर सकते हैं विदाउट सेटिंग द एक्स परमिशन, ठीक है। तो देयर इज नो एक्स परमिशन सेट ऑन f2.sh, ठीक है। लेट मी टेल यू f2.sh, इस पे देखिए एक्स परमिशन नहीं है यूजर के लिए, केवल rw है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, इसको f2.sh सेट कर दिया, सॉरी u+x, ठीक है। अब इसके बाद वी आर रनिंग द प्रोग्राम f2.sh। मैंने यहाँ 55 और 66 दो नंबर दिए और वी हैव गॉट द आंसर ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ गिविंग इनपुट टू द प्रोग्राम। दिस वी एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम्स, आई मीन व्हेन वी वर डिस्कसिंग पोजिशनल वेरिएबल्स दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड यू that is this is the way of giving input, and when we were discussing system call programming that time also I told you ki we can give input to program through command line, ठीक है। and that is the way in which different commands are actually designed, क्योंकि command जो है क्या है, they are the special programs। तो उसमें जो इनपुट आप देते हैं, जैसे आप लिखते हैं कॉपी फाइल 1 फाइल 2, तो व्हाट इज सपोज टू बी डन, फाइल 1 के कंटेंट शुड गेट कॉपीड टू फाइल 2। तो ये तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोनों फाइल जो है एज इनपुट सप्लाई करनी पड़ेंगी टू कॉपी प्रोग्राम, ठीक है। तो sir giving as command line, yes, string can also be given, but right now I am just closing the session since some other classes started. But anyways, we'll discuss and we'll continue this discussion tomorrow also, and tomorrow also I'll take the class not at 4 in the morning, only at maybe at 9:15 or 9:20, ठीक है। So I am closing my session here only. Thank you. Thank you so much, sir. Have a good day, sir. Thank you, beta. Take care.